Hi everyone, welcome back to my channel Market Riti. यहाँ पे we are discussing multiple Nifty option strategies. Last video जो हमारा था वहाँ पे we discussed intraday short straddle. इस वीडियो में we'll be discussing bull call spread और उसके कुछ advanced adjustments. Those will help us increase our probability of profit. So before getting to the video, I'm not a SEBI registered research analyst or any investment advisor. This is just for educational purpose. I'm sharing my experience with the strategy, and please do your own research before deploying any strategy. आप back test करिए. Depending on your capital, you take those calls और ये जो strategy discuss कर रहे हैं आप, you can modify the strategy basis your own indicators और अगर आप charts पढ़ते हो तो you can use that. All right. So, अगर आपको पुराना वीडियो अच्छा लगा तो please do like, share, subscribe for our channel. We plan to have similar videos every week. And do join our Telegram channel also. In the video description, I have put the link there so that I can share this PDF document with you guys on the Telegram. All right. Now let's move to the actual strategy. ये strategy है जो हमारी bull call spread है. Like I said, there would be certain enhancements on top of that, right? It will be monthly strategy. The instrument is monthly options. We will be trading bull call spread at 1:1 risk reward. Entry time हमारा जो पुराने महीने का expiry है on that particular day, monthly expiry Tuesday पे, we'll be trading at 10 a.m. right? And overlay is basically like a reference support trade जो हमारा weekly short call होगा. I'll be discussing more on that bit shortly. Okay, so coming to the theme of this trade is every month we will be having a core position जो basically हमारा bull call simple bull call spread होगा near 1:1 bull call spread on next month's expiry, and we will be shorting call on the near week expiry. So basically it's a combination of monthly expiry plus weekly expiry, and there are certain rules about it. So जो आपका like I said जो आपका core position है वो हमेशा stable रहेगा monthly expiry पे 1:1, और weekly जो calls है we will be shorting them. Okay. So even if market अगर ऊपर जाता है which might pose a threat to your short weekly call, आपका जो base core position है 1:1 bull call spread, that will kind of cushion your loss. So that's the overall theme. हमारे एंट्री रूल्स हैं यहाँ पे जो हमारा एक्सपायरी का ट्यूसडे है मंथली एक्सपायरी का, उसमें 10 AM को वी विल बी एंटरिंग द मेन पोजीशन नेक्स्ट महीने के लिए. सो buy one lot of call and sell one lot of call. So this is next month's expiry. So ये basically हमारा bull call spread हो गया simple. And try करना कि let's to have 1:1 risk reward. So ये हमारी core position हो गई. और करंटली निफ्टी लॉट साइज 75 चल रहा है, तो मैक्स लॉस अगर आप 1:1 करते हो तो इट कम्स अराउंड 3600 के आसपास आ जाता है. And on the same day we will be selling current weekly expiry call, roughly 1/3 of the spreads max loss. Basically हमारा जो हर महीने में टिपिकली 4 एक्सपायरीज होती है, 3 वीकली एंड लास्ट जो हमारी होती है वो मंथली एक्सपायरी होती है. तो हमने जो 3600 का लॉस है उसको बेसिकली 1/3 से डिवाइड किया, and to cover this loss if the core trade goes against our direction, हम लोग इससे हमारा लॉस क्वेश्चन करेंगे. बेसिकली 25 के आसपास जो भी प्रीमियम होगा कॉल का वीकली में वी विल कीप सेलिंग दैट. ठीक है. एंड जो हमारा वीकली पोजीशन होगी we will be managing that independently. I'll come to that bit later. So quick overview, max loss हमारा 3600 है, and around 25 के आसपास की will be selling the weekly calls. ठीक है. Coming to the okay, before getting to the adjustment, मैं एक पहले core position आपको बना के दिखाता हूँ. Let's build the core position first. I'm gonna go to StockMark. zoom करता हूँ इसको. Because of SEBI regulations मैं पुराने डेटा पे बैक टेस्ट कर रहा हूँ.
फॉर एग्जांपल ये अगस्त का है, तो इसमें अभी जैसे मैं मंथली एक्सपायरी पे हूँ 29 अगस्त 2024, और मेरा नेक्स्ट मंथ का एक्सपायरी होगा 26 सितंबर। तो मैं 29 अगस्त को सुबह 10 बजे 26 सितंबर का सिलेक्ट कर रहा हूँ, एंड देन आई एम गोना कंस्ट्रक्ट अ बुल कॉल स्प्रेड। ठीक है, इसमें और एक वी हैव टू टेक केयर कि प्लीज सेलेक्ट 100 वाले स्ट्राइक्स। आप अगर 50s वाले करते हो तो मोस्ट ऑफ लिक्विडिटी का इशू हो सकता है, विल बी लॉट ऑफ स्लिपेज। तो मैंने कोर पोजीशन बना ली है, बट इफ यू सी इट्स नॉट एग्जैक्टली 1:1, अभी ये 1.5 to 1 दिखा रहा है, तो थोड़ा सा पोजीशन को हम लोग ऊपर मूव करते हैं। नाउ इट्स closest to 1:1, so let's use this position now। हमने थोड़ा सा ऊपर मूव किया हमारे स्ट्राइक्स को, और 2024 में लॉट साइज 25 था। तो टू मैच द करंट स्पेसिफिकेशंस, टू गेट द फील ऑफ करंट मार्केट, हम इसको 3 लॉट से मल्टीप्लाई करते, सो दैट वी कैन सी 75, राइट। So if you see max loss, max profit, typically it should be around 3600, but yeah, that's 3900 for now, but that's okay। So ये हमने कोर पोजीशन बना लिया है, एंड जैसे हमने डिस्कस किया, हमें कमिंग वीक का एक कॉल ऑप्शन बेचना है अराउंड 25। तो लेट्स क्लोजेस्ट है 27, तो इसको बेचता है। ठीक है, लेट्स गो बैक, क्या क्या एडजस्टमेंट्स है। रेफरेंस लेग रोल, if the market moves over 500 points away from the spread, roll the reference legs out to the monthly। okay, so एक एडजस्टमेंट ये है कि हमारा जो कोर पोजीशन है बुल कॉल स्प्रेड का 25-200 है। अगर स्पॉट हमारा 25-200 से 500 पॉइंट लेस, बेसिकली 24-700 के नीचे चला जाता है, बेसिकली मार्केट बहुत नीचे चली जाती है 500 पॉइंट्स फ्रॉम द बाय लेग, we will move from वीकली सेलिंग, जो जो हमारा रेफरेंस हमने सेल किया है इसको हम लोग मंथली पे मूव कर देंगे। वी विल नॉट बी सेलिंग इन वीकलीज एनीमोर, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी काफ़ी नीचे जा चुका है। ये जो वीकलीज के प्रीमियम होंगे हमारे पोजीशन के ऊपर, वी वांट टू इंश्योर कि जो हमारा 25-300 का लेग है इसके ऊपर के कॉल्स ही सेल हो, सो दैट अगर मार्केट ऊपर भागता है तो ये जो हमारा कोर पोजीशन है दैट कैन हेल्प अस। वी ऑलवेज should be selling calls about this 25-300। ठीक है, तो ये हमारा एक एडजस्टमेंट है इनसाइड द स्प्रेड। ओके, इनसाइड द स्प्रेड अगर मार्केट आता है तो डोंट पैनिक, होल्ड द पोजीशन। ओके, सो यहाँ पे हमने ये देखा है कि 25-200 का हमने और 25-300 का ये जो स्प्रेड बनाया है, अगर मार्केट इसके अंदर घुसता है, बेसिकली लाइक करंटली अभी 25,097 पे है। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट अगर 25 सपोज 300, 350, 400 तक आता है, विच विल हर्ट आवर कॉल लेग जो हमने ये वाला बेचा है 25,500 का। हमें पैनिक नहीं करना है यहाँ पे, ये जो हमारा पोजीशन है कोर पोजीशन, दैट विल काइंड ऑफ कुशन आवर लॉस, बट एट द सेम टाइम वी वांट टू एंश्योर कि ये जो हमारा एक्टिव पोजीशन है इसका लॉस अगर 3600 के ऊपर जा रहा है, वी नीड टू बुक द लॉस। ठीक है, एंड देन एक्सपायरी डेट डिसिप्लिन, बेसिकली हमें एक्सपायरी डे पे जो वीकली कॉल्स हम लोग बेच रहे हैं, वी नीड टू एग्जिट दोस एंड रीअसेस बिफोर डिसाइडिंग द नेक्स्ट स्टेप। Don't open a new weekly short until the market is back inside the spread, selling outside, right? Okay, so अगर मार्केट 25,200 के ऊपर है, बेसिकली आपके स्प्रेड के तरफ आ रहा है, विच इज गुड फॉर योर स्प्रेड, तो तब आपको ये वीकली कॉल नहीं बेचना है। जब तक ये 25,200 के नीचे नहीं जाता तब तक आपको नहीं बेचना है, राइट। अगर ऑलरेडी बेचा हुआ है तो दैट्स फाइन, होल्ड योर पोजीशन टिल द एक्सपायरी, बट बिफोर एंटरिंग द न्यू पोजीशन आपको इसको बेचना नहीं है अगर 25,200 के ऊपर चला जाता है। हम लोग एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे तो दैट विल बी क्वाइट क्लियर। एंड लास्ट इज रिस्क सीलिंग, बेसिकली 3600 का हमने डिस्कस किया। जो भी एक्टिव पोजीशन है उसमें अगर 3600 का लॉस हो जाता है तो वी exit our active positions। okay, so let's see with few live examples, इससे काफी क्लियर हो जाएगा। ये हमने हमारी कोर पोजीशन बना ली है,
We are ready to go. Let's go day by day. Friday 30 अगस्त, स्लाइटली लॉस में हूँ मैं, मार्केट ऊपर आ गया मेरा जो एंट्री जो बाय वाला लेग है 25,200 वो उस स्प्रेड के अंदर आ गया, तो इसकी वजह से मुझे स्लाइटली लॉस दिखा रहा है, बट दैट्स फाइन। अभी भी 300 पे अभी भी मेरे स्प्रेड के अंदर है, फिर स्लाइटली प्रॉफिट है, because this position has started giving, my spread has started cushioning my loss of the short call. I'll keep moving. अभी मेरा एक्सपायरी आ गया, मैं एंड ऑफ डे पे गया और मेरा ये जो रेफरेंस ट्रेड मैंने लिया था, कॉल जो मैंने बेचा था, इसमें मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया 2,000 रुपये का। ठीक, अभी व्हेन आई बुक द वीकली प्रॉफिट ऑफ द शॉर्ट कॉल, अभी डिसाइड करता है कि नेक्स्ट क्या करना है। अभी हमारा जो 25,200 का लेग है एंड कंपेयर विद द स्पॉट, ये जो स्पॉट है 25 एक 153 पे है, बेसिकली इट्स नॉट इनसाइड आर स्प्रेड, सो वी कैन सेल द वीकली वाला। जो नेक्स्ट वीकली पे जाएंगे 12 सितंबर पे, और हम लोग 25 के आसपास का देखेंगे, 22 का बेचेंगे, 30 is too far, so let's sell this। हमने ये बेच दिया है, let's keep moving to the next expiry now। ओके हम लोग अभी नेक्स्ट एक्सपायरी में आ गए और हम लोग इसको 0 रुपीज़ पे, बेसिकली ये सारा 22 रुपये का ज़ीरो हो गया। आई एम जस्ट गोना बुक दिस। ठीक है, अभी कंपेयर करते हैं मार्केट कहाँ पे है बिफोर एंटरिंग एनी न्यू पोजीशन। 25,200 का हमारा एंट्री बेसिकली ये लेग है, और करंटली मार्केट है 25,319। बेसिकली हमारे स्प्रेड के अंदर आ गया है पूरा मार्केट, सो डोंट डू एनीथिंग, लेट्स वेट, विल कीप मूविंग। हमें कब एंट्री करना है, जब ये 200 के नीचे चला जाएगा, 25,200 के नीचे जाएगा मार्केट, तब बेसिकली हमारे अगेंस्ट जाएगा, जब बेरिश होगा मार्केट तब एंट्री करना है। लेट्स नॉट डू एनीथिंग राइट नाउ। मार्केट 25,800 पे चला गया, इफ यू सी हमारे यहाँ पे चला गया पूरा मार्केट। एंड इफ यू सी दिस ग्राफ, हम लोग एवरी वीक जैसे 2 बार हमने प्रॉफिट बुक किया, तो हमारा ओवरऑल पोजीशन का पे ऑफ डायग्राम बहुत अलग हो गया है। राइट नाउ our max loss is showing 241, max profit is 6,200, so I'm just going to keep moving। सो हमें ये जो लेग्स है ये सारा एज वन ट्रेड काउंट करना है, हमारे जो भी हमारा ट्रेड जर्नल होगा, दीज आर नॉट इंडिपेंडेंट ट्रेड, दीज आर रेफरेंस ट्रेड अराउंड दिस कोर ट्रेड। सो लेट्स मूव। अभी भी हमारे 26,000 पे चला गया है, काफ़ी हमारे फेवर में आ चुका है, सो हमें कुछ भी वीकली कॉल में कुछ भी नहीं करना है। ओके, सो वी हैव रीच द एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी डेट, एंड हमारा मंथली एक्सपायरी हो गया, तो वी गोना एग्जिट द एंटायर पोजीशन। वी गोना एग्जिट एट 7,326, राइट। सो दिस वाज आवर वन ट्रेड फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। ठीक है, आई होप आपको रूल्स समझ में आ गया। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट प्लीज़ एक बार वीडियो को वापस डिटेल में देखना, सो सो दैट यू गेट टू अंडरस्टैंड ऑल द रूल्स। और मैं ये पीडीएफ भी लाइक आई सेड टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करूंगा, सो in the description I have put the link there so that I can send this PDF to you guys on that telegram। okay, अभी let's do one thing, let's do one more example। अभी हम लोग 26 सितंबर पे है, तो 10 तारीख को टारगेट करते हैं, 10 सॉरी 10 o'clock ऑन एक्सपायरी। हम लोग अब एक्सपायरी पे है, लेट्स डू फॉर अक्टूबर। ठीक है, इफ यू सी यहाँ पे काफ़ी सारे 50s वाले ऑप्शंस लिक्विड नहीं है, तो प्लीज़ इंश्योर आप हमेशा 100 वाले स्ट्राइक्स में ट्रेड करो। हम लोग अक्टूबर एंड एक्सपायरी का हम लोग कोर पोजीशन बनाएंगे। ओके, अभी 1:3 दिखा रहा है, वी नीड टू हैव 1:1, तो इसको थोड़ा ऊपर मूव करके लिखते हैं। ओके, ये काफ़ी 1:1 रेशो में है, ठीक है, दिस इज गुड। लेट्स फिक्स दिस एज अ कोर पोजीशन। हम लोग विल कम बैक टू द वीकली, और हम यहाँ पे
जो हमारा 25 के आसपास का कॉल है उसको बेचेंगे। तो हमने वो कॉल बेच दिया एंड नाउ लेट्स सी हाउ द ट्रेड गोस। कुछ भी पैनिक नहीं करना इवन इफ इट शोज नेगेटिव अ बिट। ओके, हमारा एंड ऑफ डे चलता है। थर्सडे का एक्सपायरी आ गया है वीकली का। जो हमने 27 में बेचा है वो जीरो हो गया, so I'm just gonna book the 2000 प्रॉफिट। ठीक है, अभी हम ये देखेंगे कि करंट जो हमारा बुल कॉल स्प्रेड का एंट्री लेग है विच इज 26,300, इसको हम लोग कंपेयर करेंगे करंट स्पॉट कितना है 25,269। बेसिकली ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट से मार्केट गिरा, विच इज अगेंस्ट अस। हमारा बुल कॉल स्प्रेड है बट मार्केट 1000 पॉइंट से गिरा, सो दैट्स अ इनसेन मूव अगेंस्ट अस। तो हम लोग वीकली में कुछ भी नहीं करेंगे। जो हमारा यहाँ पे रूल था, इफ द मार्केट मूव्स 500 पॉइंट्स अवे फ्रॉम द स्प्रेड, मूव टू मंथली लेग्स। सो लेट्स मूव टू मंथली लेग्स। ठीक है, मंथली में हमारा यहाँ पे सेलिंग था, राइट, 26,400 का। तो हम लोग 26,500 को सेल करते हैं। उसके ऊपर वाले ही करना है, उसके अंदर वाले नहीं कर रहे हैं। वी हैव टू सेल आउटसाइड जो हमारा स्प्रेड है। तो हमने ये वाला सेल कर दिया। नाउ लेट्स कीप मूविंग। जब आप मंथली पे सेल करते हो तो डोंट टच एनीथिंग टिल द मंथली एक्सपायरी। बस हमें पी एंड एल वॉच करते रहना है। हमारा मैक्स लॉस इज 3600 on any active position. Just keep this moving. ओके, हम लोग आ चुके हैं अक्टूबर के एक्सपायरी पे। अभी देखो, अभी हमने बुल कॉल स्प्रेड की कोर पोजीशन बनाई थी 26,300, बट इफ यू सी मार्केट इज एट 24,233। बेसिकली ऑलमोस्ट मोर देन 2000 पॉइंट से मार्केट गिरा हुआ। सो अगर हम ये ये एडजस्टमेंट्स नहीं करते, बेसिकली जो रेफरेंस ट्रेड्स नहीं लेते कोर पोजीशन के अराउंड, अभी हमें 3600 का लॉस हो जाता। बट सिंस वी टुक दीज रेफरेंस ट्रेड, हमारा 1000 का प्रॉफिट है। सो या दैट्स हाउ वी ट्रेड। सो मैंने आपको दो अलग अलग एग्जांपल से बताया कैसे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। क्विकली रिकैप कर लेते हैं बिफोर वी क्लोज दिस वीडियो। वी आर ट्रेडिंग बुल कॉल स्प्रेड। हमें सिंपली 1:1 के जितना बेस्ट हो सके मंथली में हमें कोर ट्रेड बनाना है एंड इंश्योर आप हंड्रेड्स के स्ट्राइक्स में ही वो बनाओ। एंड वीकलीज में हमें अराउंड 25 के आसपास के जो भी प्रीमियम्स है वी विल बी सेलिंग दोज लेग्स। एंड अगर मार्केट 500 पॉइंट्स से ज़्यादा हमारे अगेंस्ट चला जाता है स्प्रेड के, वी मूव टू द मंथली लेग्स। एंड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम जो भी एक्टिव पोजीशंस है अराउंड 3600 का हमारा मैक्स लॉस रहेगा, विच इज 1:1 फॉर 100 strike difference max loss in a bull call spread. So yeah, that's our trade. Uh, ये आप please, like I said, I'm not a SEBI registered analyst or investment advisor. This is for educational purpose. आप इस strategy को back test करिए, and if you find it credible or if you want to improve on it, please treat this document as a base document. ऐसे नहीं है कि आपको 10 बजे ही एंट्री लेनी है। आप अगर आप चार्ट्स या कोई और एडवांस इंडिकेटर लगा रहे हो तो यू कैन कंबाइन दिस लॉजिक विथ योर चार्ट एनालिसिस और जो भी आपके इंडिकेटर्स है। और या तो आप फाइंड बेटर टाइम और बेटर डेट टू एंटर। काफ़ी सारे लोग इंस्टेड ऑफ एंटरिंग ऑन ट्यूसडे फ्राइडेज को एंटर करते हैं, सो दैट दे गेट द मैक्सिमम DK at the entry itself around 3:15 p.m. on Friday. So you can play around with this structure and find the strategy, sorry, build on the strategy and find a suitable one for your own trading style. So yeah, that's all for today. And yeah, please do subscribe to our channel. Would love to share more trading ideas with you all. Please do let me know in comments कैसा लगा आप लोगों को वीडियो।
I would love to improve in the next one. Thank you.